Hi everyone, my name is Ruchin and I welcome you to your PDF. So I have a very important announcement to make. So today we are going to start a new batch for GATE 2022 for civil engineering, and we are starting with RCC, reinforced cement concrete. Now in this subject, what actually we'll be covering and when it will start. So it will be starting at every day from 9 p.m. onwards. Okay, this will be a premiere. All right, and the topics that will be covered will be discussed to you, and what you need to do is you need to take a pen and a copy and please make proper notes while studying so that it helps you in retaining everything. Now what else will be covered? We'll be covering topics, complete subject will be covered. Apart from that, we'll be taking interview questions as well, because you will be studying this RCC for the point of view of doing either MTech or PhD or for going for PSUs or engineering services anywhere. So interview are a must. So the number of questions related to interview will be taken care of. Apart from that, we will also look at what are the projects that you can make if you are studying RCC. Okay, projects related to RCC. This will be useful for third year and final year students. Also, we will be exploring some abroad opportunities. Like if you are from BTech student, then what are the abroad opportunities for doing internship? If you have done your BTech, then MS abroad. If you have done MTech, then PhD abroad. We'll look into that opportunities also. Plus your post-GATE counseling. Okay, post-GATE counseling, we'll look at that also. So this is not just conventional RCC for GATE we are studying. We are taking care of complete career. Okay, your complete career. So hold tight, make notes, do proper calculation, and I wish you all the best for your exam. Thank you. Hi everyone, and welcome back to these sessions on RCC. So last lecture में हम लोग WSM almost cover कर चुके हैं. We have covered everything related to WSM जो beams के लिए relevant है. अब मैंने आपको ये बोला था कि जब तक आप WSM नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको LSM समझ नहीं आएगा. Okay, and that is true also. ठीक है, बिकॉज अगर आप WSM नहीं पढ़ोगे और आप LSM पे डायरेक्टली कूदोगे तो इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है. हालांकि यू कैन सॉल्व क्वेश्चन, बट उसके अंदर टाइम लगेगा. अगर क्वेश्चन को थोड़ा भी मॉडिफाई कर दिया, जो गेट और ESC में अक्सर होता है, क्वेश्चन को थोड़ा भी मॉडिफाई कर दिया तो यू माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या करें आप इसके अंदर. ओके, सो फॉर दैट आई टोल्ड यू कि आप सबसे पहले WSM करो. जितना पढ़ाया है 5, 6, 7, 8 लेक्चर जितने भी हैं उनको एक बार सारे के सारे देखो, एंड देन यू कम टू दिस LSM पार्ट. ओके, सो टुडे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद लिमिट स्टेट मेथड. ओके, सो द टॉपिक फॉर टुडे इज limit state method. Okay, and this is what is asked in exam. ठीक है, ये एग्जाम में आता है. एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ बीम्स यूजिंग LSM, लिमिट स्टेट मेथड. दिस इज एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ बीम्स यूजिंग LSM. अब सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि LSM है क्या, व्हाट एक्चुअली इज दिस LSM. और ये चीज़ इंटरव्यू में अक्सर पूछी जाती है. डायरेक्टली पहला क्वेश्चन जब आप इंटरव्यू में जाओगे एंड यू से दैट योर फेवरेट सब्जेक्ट इज कॉन्क्रीट, RCC आपका अगर फेवरेट सब्जेक्ट है, सो द क्वेश्चन अराइजेस टेल अस व्हाट यू मीन बाय LSM. और कई सारे स्टूडेंट्स गिव देयर आंसर कि ये लिमिट स्टेट मेथड है, बट एक्चुअली दे डोंट नो व्हाट एक्चुअली इज LSM. है क्या LSM? आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी सिंपल आंसर फॉर दिस. LSM क्या है? ऑब्वियसली इसका फुल फॉर्म लिमिट स्टेट मेथड है, बट दैट इज नॉट द आंसर. LSM क्या है? इट इज अ स्टेट, it is a state where the structure becomes unfit for living. Okay, unfit for living. It is a state where the structure becomes unfit for living. बहुत ध्यान से समझना इसको. ये इंटरव्यू का पार्ट है. अब इंटरव्यू में क्या बोलेंगे? अगर आपसे बोलते हैं कि टेल अस अबाउट LSM, तो आप क्या बोलोगे? लिमिट स्टेट मेथड इज अ मेथड इन विच वी डिजाइन the beams according to its structural failure.
यानी एक ऐसा स्टेट है जहां पे हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो जाए, अनफिट फॉर लिविंग, रहने लायक ना रहे। अभी जो अनफिट बोला है, अनफिट हो सकता है दो तरीके से हो, ठीक है, दो तरीके से, या तो कंप्लीटली वो कोलैप्स कर जाए या फिर वो डिफॉर्म कर जाए, ठीक है, या तो वो कंप्लीटली कोलैप्स कर जाए या फिर कंप्लीटली क्या कर जाए, डिफॉर्म। फॉर एग्जांपल अभी जहाँ पे आई एम रिकॉर्डिंग दिस थिंग, ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा बीम्स और ये, आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, आप आपके रूम में घर पे बैठे हुए हो, तो वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर कुछ बना हुआ है, ऊपर छत है, कॉलम्स है, बीम्स है, वॉल है, एवरीथिंग इज देयर। अब आप उसके अंदर कब नहीं रहोगे, या तो ऊपर का बीम टूट जाए तब आप नहीं रहोगे, या फिर आपको बीम ऐसा झुकता हुआ दिखे, डिफॉर्म होता हुआ दिखे, तब भी उसके अंदर ऑब्वियसली नहीं रहेंगे। तो इस स्टेट तक, जब तक कि बीम, या तो बीम या कॉलम या स्ट्रक्चरल एलिमेंट, स्लैब वगैरह जो भी है, जब तक कि वो या तो डिफॉर्म ना करने लग जाए या फिर वो टूट ही ना जाए, तब तक के लिए हम जिस मेथड से डिजाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एलएसएम। ओके, डब्ल्यूएसएम में ऐसा नहीं था, डब्ल्यूएसएम वाज अ बिट डिफरेंट। ये एलएसएम, इट इज द स्टेट वेयर द स्ट्रक्चर बिकम्स अनफिट फॉर लिविंग। उस स्टेट तक लगभग जो एक स्ट्रक्चर का लाइफ है, लाइफ स्पैन है, दैट इज क्लोज टू 100 ईयर्स, 90 से 110 100 ईयर्स, इसके आसपास कुछ रहता है। कोई स्ट्रक्चर आपको 100 150 साल 200 साल पुराने भी मिलेंगे, सो देयर आर स्ट्रक्चर, बट हम टिपिकल लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें तो दैट इज 100 ईयर्स। तो 100 साल तक के लिए ये डिजाइनिंग होती है ऑलमोस्ट। अब लिमिट्स, अब ये कोलैप्स है और ये डिफॉर्म है, अब इनको नए नए नाम दे दिए। नाम क्या दिया, जब हम कोलैप्स बोल रहे हैं, कोलैप्स मतलब कोई बीम या स्लैब हमारा पूरा टूट गया है, क्रैक आ गया उसके अंदर, इसको हमने बोल दिया लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। ओके, डिफॉर्म को बोल दिया लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ठीक है, सर्विसिबिलिटी का मतलब ही डिफॉर्मेशन है, इतना सिंपल सा समझना है। अभी तक क्या बताया, लिमिट स्टेट मेथड है एलएसएम। एलएसएम क्या है, एक मेथड है जिसके अंदर हम अनफिट होने का वेट करते हैं। अनफिट, कोई स्ट्रक्चर अनफिट हो जाएगा वहां तक करेंगे। अनफिट दो तरीके से हो सकता है, या तो कोई स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाए या कोई स्ट्रक्चरल एलिमेंट कोलैप्स हो जाए, बीम, स्लैब, कॉलम, वॉल, कुछ भी कोलैप्स हो जाए, या फिर कोई सभी पार्ट डिफॉर्म हो जाए। जब कोलैप्स होगा तो उसे हमने बोला लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, और डिफॉर्म मतलब लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ओके, अब कोलैप्स के अंदर हम जो जो पढ़ते हैं वो है फ्लेक्चर, shear, torsion, compression, and one more, टेंशन। बेसिकली आपने सोम में पढ़ा होगा कि 5 तरीके की फोर्सेस होती हैं, छठी फोर्स नहीं है हमारे लिए, 5 फोर्सेस है। कौन कौन सी, टेंशन, कंप्रेशन, बेंडिंग, शियर एंड टॉर्जन, 5 तरीके, इसी पे पूरा हमारा सोम चलता है। तो यहां पे क्या है, फ्लेक्चर मतलब बेंडिंग, शियर, टॉर्जन, कंप्रेशन एंड टेंशन। ओके, तो यहां पे देखो स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन कौन से डिजाइन करते हैं। इन 3 के लिए, फ्लेक्चर, शियर, टॉर्जन, वी डिजाइन बीम्स। ओके, फ्लेक्चर और टॉर्जन के लिए, नॉट फॉर शियर, फ्लेक्चर और टॉर्जन के लिए वी डिजाइन स्लैब्स। ठीक है, क्योंकि स्लैब के अंदर शियर के लिए हम लोग डेप्थ ही प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसके लिए जनरली नहीं होता। हालांकि हम जब डिजाइनिंग पढ़ेंगे तो थोड़ा इसका कंसिडरेशन लेंगे। अब फ्लेक्चर, शियर, टॉर्जन, कंप्रेशन। नेक्स्ट हमारा बचता है कॉलम। तो कॉलम के अंदर एक तो हम कंप्रेशन लेते हैं, दूसरा हम लोग बेंडिंग लेते हैं, तो दैट इज कॉलम। हम लोग टेंशन वाले पार्ट को इसके अंदर ज्यादा एनालाइज नहीं करते। तो 5 तरीके की फोर्सेस हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में। अब उसमें मैंने आपको स्ट्रक्चरल एलिमेंट बता दिए, किसको किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं। ओके, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ बीम्स बेस्ड ऑन फ्लेक्चर, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग के लिए। और जो हमने डब्ल्यूएसएम में किया था दैट वाज आल्सो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बेंडिंग, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग के पर्पस से ही था। ऑलराइट, अब देखो आगे, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स,
फ्लेक्सर, शियर, टॉर्शन, कंप्रेशन एंड बेंडिंग। नाउ लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी यानी डिफॉर्मेशन, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा डिफ्लेक्शन, कोरोजन, वाइब्रेशन एक्सेट्रा, क्रैकिंग लिख लो। ये सारा क्या है? लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी है। तो इसके लिए स्पेसिफिकली डिजाइन नहीं किया जाता है, हम लोग इसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कुछ प्रोवाइड कर देते हैं। इनके लिए तो वी प्रॉपरली डिजाइन, ओके, बट इसके लिए हम लोग इतना ज़्यादा डिज़ाइन नहीं करते, कोडल प्रोविजंस हैं वो कुछ अप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इसके लिए भी सेफ हो जाता है, इसके लिए भी सेफ हो जाता है। तो यहाँ तक का स्टोरी क्या है? LSM। LSM का मतलब क्या है? लिमिट स्टेट मेथड। इट इज अ स्टेट where the structure becomes unfit for living. Okay, structure becomes unfit for living. And now how it becomes unfit? Either in collapse or in deformation. अगर collapse में तो उसे बोल रहे हैं लिमिट स्टेट ऑफ collapse, डिफॉर्मेशन में तो उसको बोल रहे हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। ये 5 क्राइटेरिया है जो कि हमें पढ़ने होते हैं, और यहाँ पे ये 4 क्राइटेरिया जिनसे सर्विसेबिलिटी में डिफॉर्मेशन आ सकता है। ओके, इनके लिए वी हैव कोडल प्रोविजंस, कोडल प्रोविजंस, और इसके लिए हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट डिजाइनिंग करते हैं। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि आप बताओ व्हाट इज LSM, तो आपको ये सारी कहानी पता होनी चाहिए। ओके, सारी कहानी पता होनी चाहिए। अब इसके अंदर हम लोग नेक्स्ट आते हैं, आप लोग इसको लिख लो प्लीज, वीडियो को पॉज करके एक बार लिख लो। ओके, अब देखो नेक्स्ट इज, जब मैं LSM बोल रहा हूं तो देयर आर 2 थिंग्स। किसी भी RCC में देयर आर 2 थिंग्स। RCC में कोई सी भी चीज है, एक तो हमारे लिए होता है मटेरियल, और दूसरा होता है हमारे लिए लोड। ठीक है, मटेरियल और लोड। अब देखो, हमने जब डिजाइन किया WSM से, ओके, हम लोग क्या ले रहे थे? फॉर एग्जाम्पल मान लो M20 के लिए सिग्मा CBC वॉज 7, करेक्ट, सिग्मा CBC वॉज 7, यानी कि उसका स्ट्रेंथ 20 है, बट हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के उसकी वैल्यू को, हम स्ट्रेंथ को कितना ले रहे हैं? 7 ले रहे हैं, 20 नहीं रहे, यानी अप्रॉक्सीमेटली फैक्टर ऑफ सेफ्टी नियरली इक्वल टू 3 है, नियरली इक्वल टू 3। आप देखोगे सिग्मा CBC में यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज थी सारी की सारी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कम कर रखी, ठीक है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कम कर रखी। और जब हमने डिजाइनिंग करी थी फ्रॉम WSM, तो हमने लोड को कोई चेंज नहीं किया, लोड हम लोग उतना ही ले रहे थे, ठीक है, लोड में कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगाई, लोड को नहीं बढ़ाया। डिजाइन फिलॉसफी क्या थी WSM में कि हम क्या करेंगे, इसे मटेरियल के स्ट्रेंथ को 20 है, 20 के स्ट्रेंथ को हम 3 गुना कम कर देंगे, मटेरियल के स्ट्रेंथ को कम कर देंगे और फिर डिजाइन करेंगे। तो हम लोड को कुछ नहीं कर रहे थे। ओके, बट दिस एक्चुअली रिजल्ट्स इनटू अनइकोनॉमिकल सेक्शन। अनइकोनॉमिकल सेक्शन, क्योंकि RCC और RCC में कंक्रीट और स्टील इतना ज्यादा लग जाता है कि स्ट्रक्चर थोड़ा महंगा होने लग जाता है। ओके, तो फिर आया LSM। अब LSM में क्या हो रहा है, WSM में समझना, WSM में क्या हुआ, मटेरियल की स्ट्रेंथ को तो कम कर दिया है, ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा, मटेरियल की स्ट्रेंथ को कम किया है, और लोड को कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सॉरी, लोड पे कोई चेंज नहीं, जितना भी लोड आ रहा है उसको कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। अब एक दूसरा मेथड और होता है, दिस इज कॉल्ड ULM, अल्टीमेट लोड मेथड। ULM अल्टीमेट लोड मेथड में क्या होता है, इसके अंदर उल्टा होता है, इसके अंदर मटेरियल के साथ में कोई छेड़ाछाड़ी नहीं है, मटेरियल की स्ट्रेंथ को कोई चेंज नहीं करते, बट वो क्या करते हैं, डिजाइन करते हुए लोड को बढ़ा देते हैं। ओके, लोड को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ऐसा मानते हैं कि अगर 100 किलोन्यूटन पर मीटर आने वाला है तो उस पर कुछ 150 किलोन्यूटन पर मीटर आ रहा होगा, ऐसा कुछ मान लेते हैं, 150-200 किलोन्यूटन पर मीटर ऐसा कुछ लोड आ रहा होगा, ये मान के डिजाइनिंग कर देते हैं। ओके, अब आते हैं LSM पे, हालांकि ये हमें नहीं पढ़ना है, बट जस्ट आपको बताया है।
बहुत पहले मतलब पहले के जब एग्जाम्स होते थे 8-10 साल पहले, तब कुछ यूएलएम के कभी कभी क्वेश्चन आ जाते, बाकी जनरली नहीं आता है, हमें हमेशा एलएसएम ही पढ़ना है। अब एलएसएम में हम क्या करते हैं, हम लोग साइमल्टेनियसली मटेरियल की स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं और लोड को बढ़ा देते हैं। समझो इस चीज को, मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो मेरा मटेरियल है दैट इज एक्चुअली वीक, वो वीक है और उस पर हमारा जो लोड जितना आना है उससे ज्यादा लोड आ रहा है, और फिर डिजाइनिंग करेंगे तो दैट विल गिव अस डबल सेफ्टी। ओके, दिस गिव्स मी डबल सेफ्टी। ओके, तो इसका एक्चुअली क्या होता है, जब हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं ना, तो द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर इंप्रूव्स विच एक्चुअली रिड्यूसेस द कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट वो सारा रिड्यूस कर देता है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल पड़ता है। मटेरियल की स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं, लोड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, लोड को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अब मटेरियल की स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं यानी वी आर डिवाइडिंग बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, और लोड को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, अब ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग अलग है, तो क्या किया है डिफरेंशिएट करने के लिए, इसको बोल दिया partial factor of safety and this is called load factor of safety। स्टोरी बनाते जाना अपने दिमाग में सारी चीजें, कैसे कैसे क्या क्या चीजें आ रही हैं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ताकि क्योंकि क्वेश्चन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मिलेगा, क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा उलझा हुआ मिलेगा। रिसेंट टाइम्स के क्वेश्चन जो आ रहे हैं दे आर नॉट दैट इजी जैसे पहले आते थे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं, इसी से वापस स्टार्ट करते हैं। आपको अगर कुछ जरूरी लगता है तो प्लीज नोट डाउन, पॉज कर लो वीडियो को एक बार, कुछ नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लो, देन हम लोग वापस से आगे लिखना शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग एलएसएम में आते हैं। दो चीजें हैं, एक है मटेरियल और दूसरा है लोड। तो पहले हम लोग लिखेंगे मटेरियल के बारे में। ओके, मटेरियल में सिंपल सा आरसीसी के अंदर दो मटेरियल है, एक हमारा स्टील है और एक हमारा कंक्रीट है। तो मटेरियल की बात करेंगे तो मटेरियल में वी हैव फॉर कंक्रीट हम लोग क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दैट इज इक्वल टू FCK। ठीक है, दैट इज इक्वल टू FCK, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और उसके बाद में यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, इसको लिया हमने FY। हम लोग WSM में क्या कर रहे थे, WSM में ध्यान से सुनना, थोड़ी थोड़ी अब चीजें चेंज होती जाएंगी। WSM में कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम FCK नहीं ले रहे थे, व्हाट वी आर टेकिंग सिग्मा CBC, हम ले रहे थे सिग्मा CBC। यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील हम लोग FI नहीं ले रहे थे, वहां पे फिक्स्ड वैल्यू था 230 फॉर Fe41/500 और 190 कुछ था हमारा Fe250 के लिए। ठीक है, 250 के लिए। अब देखो यहां पे हमने क्या लिखा, अब यहां पे हम सिग्मा CBC नहीं लेंगे, हम FCK लेंगे, और वहां पे जो फिक्स्ड वैल्यू था कि हमें 230 या 190 लेना है वो नहीं, यहाँ पे FY लेंगे। ओके, FY। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ M20 ग्रेड कंक्रीट और Fe415 स्टील, इसको यूज कर रहे हैं, लेट्स राइट दिस डाउन इन द फॉर्म ऑफ एन एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पे this value is representing FCK and this value is representing FY। ओके, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मटेरियल के लिए, जस्ट फॉर मटेरियल व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस। दिस इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस divided by factor of safety, or let's say it is partial factor of safety. It is what?
पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अब देखो यहां पे यही हो रहा है ना, हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल की स्ट्रेंथ को ऑब्वियसली कम करते जा रहे हैं। मटेरियल की स्ट्रेंथ को क्या कर रहे हैं हम लोग, कम कर रहे हैं। अगर मटेरियल की स्ट्रेंथ को मैं कम कर रहा हूं तो मुझे ऑब्वियसली डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है। फॉर स्टील द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज टेकन एज 1.15। ओके, 1.15। तो इसका परमिसिबल स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक कितना है, Fy है, दिस वन Fy डिवाइडेड बाय 1.15, दिस इज इक्वल टू 0.87 Fy। इसको ध्यान रखना है, स्टील के लिए इट इज 0.87 Fy। अब दूसरी चीज हम लोग देखते हैं, फॉर कॉन्क्रीट। फॉर कॉन्क्रीट फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.5। अब ये आपको याद रखना है, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी एग्जाम में ये चीज कई बार पूछी जाती है। ठीक है, कई बार पूछी जाती है कि स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है और कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है। देखो, दो चीज समझो, दो चीज मिलके हमारा आरसीसी बन रहा है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.5, स्टील के लिए इट इज 1.15। ओके, अब देखो, when factor of safety is 1.5 for concrete, तो इसके लिए जो परमिसिबल स्ट्रेस हो जाना चाहिए वो कितना होगा, FCK अपॉन 1.15, सॉरी FCK अपॉन 1.5, दिस विल गिव 0.67 FCK, 0.67 FCK। अब यहाँ पे एक स्लाइड चेंज है, स्लाइड चेंज, इसको लिख लो एक बार, फिर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देयर इज जस्ट अ वेरी स्मॉल चेंज, बहुत छोटा सा चेंज है इस जगह पे। वीडियो को पॉज करके प्लीज लिख लो एक बार। ओके, अब देखो, मैं यहाँ से इसी चीज को रिमूव कर रहा हूँ। अब देखो, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 1.5 is applied on 0.67 FCK instead of FCK to take care of slenderness ratio effect, to take care of slenderness ratio effect. Factor of safety of 1.5 is applied on 0.67 FCK. Factor of safety 1.5 हम लोग किस पे लगाएंगे, 0.67 FCK पे, ना कि FCK पे, to take care of slenderness ratio effect. अब ये slenderness ratio effect क्या होता है आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, जब कॉलम्स आएगा तब इसको पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस ये ध्यान रखो कि ये जो परमिसिबल स्ट्रेस लिखा है वो मैंने FCK अपॉन 1.5, यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्या हो जाएगा, therefore permissible stress in concrete, this is equal to 0.67 FCK अपॉन 1.5, करेक्ट, अपॉन 1.5। यानी ये जो मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाना है वो लगाना है 0.67 FCK पे, ना कि FCK पे। दिस विल गिव मी 0.45 FCK, 0.45 FCK। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप इतना अच्छे तरीके से डेप्थ में पढ़ोगे ना तो आपको क्वेश्चन को उलझाने के चांसेस बहुत कम होंगे। गेट में क्या करेगा वो, गेट में इंजीनियरिंग सर्विसेज में अच्छे लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या करता है, वो ऐसा बोल देगा कि अप्लाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंस्टेड ऑफ 0.67 अप्लाई इट ऑन लेट्स से 0.8 FCK। ठीक है, अप्लाई इट ऑन 0.8 FCK। तब आप क्या करोगे, अगर आपको ये बेसिक नहीं पता है आप नहीं कर पाओगे, एंड गेट में ऐसा कर चुका है। ओके, नॉट वंस, एक्चुअली ट्वाइस, इस तरीके के चेंजेस गेट कर देता है।
तो आपको बेसिक सारे बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ओके, अब देखो ये मैंने आपको बताया, दीज वैल्यूज आर एज पर IS 456, ये लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज एज पर IS 456, दिस इज ऑल्सो एज पर IS 456। ओके, अब इंटरव्यू में एक चीज और पूछते हैं, आप ये बताओ कि कंक्रीट के लिए तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा है, स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम है, ऐसा क्यों, दोनों के लिए बराबर क्यों नहीं रखी? तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है, सिंस कंक्रीट क्या होता है, फील्ड पे बनाया जाता है, ओके, उसको लेबर बनाती है, अब उसके अंदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन या टेम्परेचर कंडीशंस, वेदर कंडीशंस अलग अलग हो सकती है, तो उसके अंदर वेरिएशंस के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम लोग उसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं। स्टील के लिए हम 15% ज़्यादा क्यों प्रोवाइड कराते हैं या 1.15 क्यों प्रोवाइड कराते हैं? बिकॉज ये हॉट रोल्ड सेक्शन है सारे के सारे, करेक्ट, सारे के सारे फैक्ट्रीज में बनते हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, अंडर स्किल्ड सुपरविजन, लोग होते हैं उसको देखने के लिए, फैक्ट्रीज में बनते हैं अंडर ऑल कंट्रोल्ड कंडीशन, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बनता है, तो उसके अंदर वेरिएशंस के चांसेस कम होते हैं, सो दैट्स व्हाई हम उसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा कम प्रोवाइड कराते हैं। ओके, ये था ओवरऑल ऑन मटेरियल के बारे में। तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। मटेरियल के लिए सबसे पहले जब हम स्टील की बात करेंगे तो स्टील में परमिसिबल कितना है 0.87 FI, और अगर हम लोग कंक्रीट की बात करते हैं तो कंक्रीट में कितना है 0.45 FCK, 0.45 FCK। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई वेरिएशन होता है तो आपको पता है कि वेरिएशन को किस तरीके से टैकल करना है, यहाँ पे कुछ ये बदल दिया तो ये बदल जाएगा, ओके, यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर बदल दिया तो ये भी चेंज हो जाएगा, गेट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी तक चेंज कर चुका है, ओके, तो थोड़ा ध्यान रखना है। ये सारी चीज क्लियर है, प्लीज नोट दिस डाउन एंड देन वील मूव अहेड। ओके, अब देखो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वील टॉक अबाउट लोड। लेट्स टॉक अबाउट लोड। LSM में क्या कर रहे हैं, मटेरियल की स्ट्रेंथ को कम कर रहा है और लोड को क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है ताकि डबल सेफ्टी हो जाए। अब क्या कर रहे हैं हम, लोड को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी सिंपल सा मतलब क्या है, आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, करेक्ट, लोड को बढ़ाना है यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, डिजाइन लोड दिस इज इक्वल टू working load into some factor of safety, okay, into factor of safety. This factor of safety is called load factor of safety, ठीक है, क्योंकि लोड के लिए तो लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। नाउ दिस फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स, ओके, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर डेड लोड है, लाइव लोड है, अर्थक्वेक लोड है, विंड लोड है, अलग अलग तरीके के लोड हैं, ओके, तो उसके लिए वी आर गोइंग टू मेक अ टेबल। सबसे पहले मैं एक बार टेबल बना देता हूँ एंड देन आप लोग उसको देख के बनाना, कहीं कुछ एरर ना हो जाए। यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो टिल नाउ। यहाँ पे है हमारे पास में कॉम्बिनेशन, दिस इज लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। मैंने आपको दो वर्ड इंट्रोड्यूस कराए थे, वही है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। ओके, अब एक लोड लेते हैं, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड और EQ अर्थक्वेक लोड। यहाँ पे भी डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। विंड लोड और अर्थक्वेक में से कोई एक ही एक्ट करेगा, दोनों के दोनों एक साथ एक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज द चांसेस ऑफ बोथ ऑफ देम एक्टिंग टुगेदर आर वेरी 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 लेस। तो उस प्रोबेबिलिटी को वी डू नॉट कंसिडर, और हम इसके अंदर सिर्फ या तो विंड लोड लेंगे एक टाइम पे, या फिर एक टाइम पे हम क्या लेंगे, सिर्फ अर्थक्वेक लोड।
ओके, तो हमारा जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है दैट इज डेड लोड प्लस लाइव लोड हो, डेड लोड और लाइव लोड दोनों एक्ट कर रहा हो, तो इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है 1.5 1.5 1 1 और यहाँ पे कुछ भी नहीं। मतलब अगर डेड लोड और लाइव लोड एक्ट कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, डेड लोड को 1.5 बढ़ा देंगे और लाइव लोड को भी 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो जनरली हम लोग करते हैं, जो आपने किया होगा। अब डेड लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक, तो इसके लिए क्या करेंगे, ओके इसमें एक वेरिएशन और आता है 0.9 का, तो वो नहीं कर रहे, वो जरूरी नहीं है। अब अगर तीनों एक्ट हो जाए प्लस सॉरी डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस WL और EQ, तो ये हमें क्या देगा 1.2 1.2 1.2 1 0.8 एंड 0.8। ओके, इस टेबल को आपको याद रखना है बिकॉज इससे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, हम पूरा एक सेशन रखेंगे जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। ओके, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इस टेबल से किस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं। अभी के लिए आप ये टेबल नोट करें, और अगर आपको दे रखा है कि सिर्फ डेड लोड एक्ट हो रहा है, ओके सिर्फ और सिर्फ क्या एक्ट हो रहा है, डेड लोड ही एक्ट हो रहा है, बाकी कुछ एक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको कितना करना है 1.5 टाइम्स बढ़ा देना है। ओके, अब डेड लोड के साथ में लाइव लोड है या विंड लोड है, तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन रहेंगे। ओके, अब एक नोट लिखना है आपको। नोट में क्या लिखना है, विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड should never be considered simultaneously. It is assumed that the maximum of the two, यानी wind load or earthquake, is taken for design। ठीक है, हमेशा क्या होगा, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा हम उसे लेंगे। कोई एक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, दोनों की वैल्यूज दे रखी है, तो दोनों को एक साथ प्लस करके नहीं लेंगे, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है हम उस वैल्यू को कंसीडर करेंगे हमारे डिजाइन पर्पस के लिए। अब नेक्स्ट हमें लिखना है इसके LSM के बीम्स के अजम्पशन क्या है। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट अजम्पशंस इन्वॉल्वड इन बीम। तो नेक्स्ट आते हैं, इसको एक बार लिख लो प्लीज। ओके, लिख लिया। नेक्स्ट आते हैं, assumptions in LSM for beams। ओके, बीम्स के लिए सिर्फ फ्लेक्चर वाले assumptions in LSM for beams। जब हम WSM पढ़ रहे थे तो देयर वर 4 assumptions, वो चारों assumptions आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे कुछ और चेंजेस आएंगे इसके अंदर, तो फर्स्ट assumption लिखते हैं, assumption नंबर 1, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। इसको ऐसा नहीं कि assumption थ्योरी है तो इसको रहने दे, गेट में assumption से भी क्वेश्चन पूछ रखा है। ऐसा क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग assumption इज कॉमन इन WSM, LSM एंड प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट। ओके, तो बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, इसको पढ़ना है आपको, ठीक है, आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। मैं इतना डेप्थ में इतना टाइम लेके आपको इसीलिए बता रहा हूं। assumptions in LSM for beams, the first assumption is plane section
before bending remains plane after bending, remains plane after bending. बिफोर बेंडिंग आफ्टर बेंडिंग का कैसा रहता है, सेम रह रहा है. ओके इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स स्ट्रेन प्रोफाइल इज लीनियर. ठीक है, हमारा स्ट्रेन प्रोफाइल कैसा रहेगा, लीनियर. और हाँ ये अजम्पशंस इंटरव्यू में भी पूछते हैं, इसलिए ध्यान रखना है. सेकेंड अजम्पशन पे आते हैं. द मैक्सिमम स्ट्रेन in highly compressed extreme fiber in concrete is 0.0035. अभी इसको लिख लो, मैं टेबल के अंदर बताऊंगा सारी चीजें. एक्सट्रीम फाइबर इन कॉन्क्रीट इज 0.0035. आगे लिख देते हैं प्योर बेंडिंग. प्योर बेंडिंग. थर्ड an acceptable stress strain curve is given by, acceptable stress strain curve is given by देखो यहां पे लिखते हैं हम लोग स्ट्रेस एंड लेट मी राइट हियर स्ट्रेन. ओके एक्सेप्टेबल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा है देखना यहां पे. यहां से लेके यहां तक, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं सो दैट इट बिकम्स अ बिट इजी, थोड़ा सा देखने में थोड़ा इजी लगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. ओके यहां से लेके यहां तक इट इज पैराबोलिक एंड देन वो क्या हो रहा है, स्ट्रेट जा रहा है. यहां पे पॉइंट्स मार्क करते हैं. दिस स्ट्रेस इज FCK, this strain is 0.002, this is 0.0035, 0.002, 0.0035. अब दूसरा, जब हमने FCK पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया था, तो कर्व समवेयर कुछ ऐसा आ जाएगा 0.67 FCK, 0.67 FCK. अब उसके बाद में क्या किया था, देन हमने 0.67 FCK पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया, तो हमें ऐसा कुछ कर्व मिला, जो कि यहां से लेके यहां तक इट इज पैराबोलिक. ओके और यहां से लेके यहां तक इट इज स्ट्रेट. स्ट्रेस कितना आएगा, 0.45 FCK. ओके सो वी आर यूजिंग दिस कर्व. अभी ध्यान रखना है, दिस इज दिस एंड दिस. These three are parabolic and this and this. These are straight. बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग से कैसे कहानी चली है इसकी, क्योंकि गेट में क्या होता है, ये जो कर्व ऐसे बना हुआ है ना पैराबोलिक, वो इसको स्ट्रेट कर देगा, ट्राइंगल बना देगा और फिर क्वेश्चन दे देगा आपके सामने लिंक्ड आंसर क्वेश्चन. तो अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो लिंक्ड आंसर क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं, स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे, पता भी नहीं चलेगा स्टार्ट कैसे करें. इसलिए जितना जितना जिस तरीके से बता रहा हूं, प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स, प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स और फिर ही आगे बढ़ें. एन एक्सेप्टेबल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज गिवन बाय दिस. नेक्स्ट असम्पशन आता है फोर्थ.
the tensile strength of concrete is ignored. ठीक है, the tensile strength of concrete is ignored. Second, the maximum strain at the time of failure in tensile steel epsilon s should not be less than Fy upon 1.15 ES plus 0.002. तो इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे, प्लस 0.002. और एक लास्ट असम्पशन और है, सिक्स्थ, द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस are obtained from respective stress strain curve, from their respective stress strain curve. ओके, ये ऐसा लिख सकते हो, द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, और लेट्स से इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, the stresses in compression reinforcement, the stresses in compression reinforcement, यानी जब डबली reinforced बीम की बात करेंगे तब उसमें कहाँ से डिराइव करते हैं, फ्रॉम रेस्पेक्टिव स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इससे निकालते हैं. अब देखो इन सारे असम्पशंस में हमने जो जो पढ़ा है ना, उससे मेन क्या है, एक तो ये वाला पार्ट है और 0.0035 वाला पार्ट है. तो मैं आपको एक फिगर के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. मान लो कि ये है B, ओके, एंड लेट्स से कि ये हमारे लिए एरिया ऑफ स्टील है, और यहाँ पे दिस इज D. एरिया ऑफ स्टील, ठीक है. अभी मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि ये न्यूट्रल एक्सिस को हम क्या बोल रहे हैं, है वैसे ही है जैसे हम WSM में x से पढ़ते थे, है सिंपल नाम चेंज हो जाएगा, दैट विल बिकम XU, दैट्स इट, बाकी कोई चेंज नहीं होगा. ओके, अब देखो यहाँ पे स्ट्रेन डायग्राम है. आपको पहला असम्पशन क्या लिखा है, दैट प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, यानी स्ट्रेन डायग्राम कैसा है मेरे लिए, लीनियर है, दैट इज लीनियर. बट क्या कहीं पे मैंने आपको ऐसा लिखा है कि इलास्टिसिटी कांस्टेंट है? याद रखना इस चीज को, हमने WSM में लिखा है दैट इलास्टिसिटी इज कांस्टेंट, बट LSM में इलास्टिसिटी का कोई वर्ड नहीं आया है. इसका मतलब जब हम ये लिखते हैं, अगर मैं ये लिख रहा हूं कि ये लीनियर है, ये लीनियर है, बट इसका मुझे नहीं पता कि इलास्टिसिटी मेरे लिए कांस्टेंट है कि नहीं है, तो मेरा स्ट्रेस डायग्राम आई कैन नॉट से, इट विल नॉट बी लीनियर. हमें नहीं पता कि लीनियर होगा कि नहीं होगा, ठीक है. तो यहां पे हमारा स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनेगा, it will be something like this. The maximum strain in the compression fiber is 0.0035. ये जो स्ट्रेन है ना मैक्सिमम कितना ले रखा है, 0.0035. और इसकी बात करें स्टील में, स्टील के लेवल पे कितना स्ट्रेन है, Fy अपॉन 1.15 ES प्लस 0.002. ओके, Fy अपॉन 1.15 ES हो क्या रहा है ये, इस टर्म को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये यही है, दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई. परमिसिबल स्ट्रेस कितना लिखा था, 0.87 Fy अपॉन ई, एग्जैक्टली वही तो है. Fy अपॉन 1.15 कितना हो जाएगा, 0.87 Fy. ओके, अब यहाँ पे जब हम आगे पढ़ेंगे एनालिसिस पार्ट में, तब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे स्ट्रेन डायग्राम. ओके, तो अभी के लिए मैं बना देता हूँ. स्ट्रेन डायग्राम कैसा बनेगा,
हमने क्या लिखा था, हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस ट्रेंड डायग्राम इस तरीके से कुछ है, ओके 0.002 0.0035 और ये कितना है 0.45 एफसी के। इसको इससे करके यूं करके यहां पे लगा दो इस जगह पे, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ओके समथिंग लाइक दिस। तो यहां से लेके ये स्ट्रेन का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.002। स्ट्रेस कितना है टॉप पे, स्ट्रेस 0.45 से, ध्यान रहे टॉप पे, एवरेज स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। तो ये टोटल हमारा था इंट्रोडक्शन टू योर एलएसएम, कि एलएसएम क्या है, इसके अंदर क्या पढ़ना है, क्या क्या अजम्पशंस हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस पे लगा रहे हैं, स्ट्रेसेस कितने परमिसिबल स्ट्रेसेस, इन सारी चीज़ों की हमने बात करी। अब क्या करेंगे हम, अब हम जाएंगे आगे के लेक्चर में, जिसमें विल स्टार्ट ऑफ विथ एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम यूजिंग लिमिट स्टेट मेथड एलएसएम। और ये आपको एग्जाम में इट इज़ माई गारंटी कि आपको 100% मिलना ही मिलना है, ओके। तो बहुत ध्यान से लेके बैठना है। अगर आपने WSM नहीं देखा है तो इट इज़ अगेन माई रिक्वेस्ट कि आप WSM को दोबारा से देख लो पूरा का पूरा, ठीक है, तब जाके आपको चीज़ें क्लिक करेंगी, समझ में आएंगी, ओके। सो वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। Till then, please keep revising and make proper notes, and we'll meet in the next lecture. Till then, take care. Bye bye.